ஹலோ கொடி கொஞ்சம் கீழே இருக்குது பின்னாடி மக்கள் கொடி அன்பார்ந்த சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி வாக்காளர் பெருமக்களே, உங்களை நாடி குக்கர் சின்னத்திலே வாக்களியுங்கள் என்று டிடிவி தினகரன் அவர்களின் ஆதரவு பெற்ற வேட்பாளர் பாசமிகும் தம்பி ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு குக்கர் சின்னத்திற்கு வாக்களித்து டிடிவி தினகரன் அவர்களின் வெற்றிக்கனியை நீங்கள் தர வேண்டும் என்று வாக்கு சேகரிக்க மரியாதைக்குரிய AIMIM கட்சியின் தலைவர் அசாருதீன் ஓய்சி சாப் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, 2011 மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு நீங்களெல்லாம் வாக்களித்தது போல மீண்டும் அம்மா ஆட்சி மலர 2016 வாக்களித்தது போல அதற்கு பின்னால் வந்த மோடியின் எழுபடி ஆட்சியை வீசி எடுத்து அம்மா ஆட்சியை மலர செய்வதற்காக மக்கள் செல்வர் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் உங்கள் வெற்றி வேட்பாளர் ராஜேந்திரன் அவர்களை திருவல்லிக்கேணி பகுதியிலே வேட்பாளராக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார். ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி அம்மாவின் ஆட்சியை மலர செய்ய நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய சின்னம் குக்கர் என்பதை உங்களிடம் நான் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். அன்பார்ந்த திருவல்லிக்கேணி மக்களே, ஓஎல்சி சாப் பேச இருப்பதால் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா 1000 விளக்கு பாயிண்ட் இருக்கு, சைதாப்பேட்டை பாயிண்ட் இருக்கு, ஐசோஸ்ல ஒரு யூனிட்ல பேச வேண்டியது இருக்கு. நான் சுருக்கமாவே முடிச்சுக்கிறேன். இந்த பகுதியில திமுக இருந்து வாரிசாக வந்த அனுபவமே இல்லாத ராஜேந்திரன் சார் எடுத்தீங்கன்னா 18 வயசுல இருந்து அரசியல் களம் கண்டவர். அவரோட வயசு கூட உதயநிதி சாருக்கு கிடையாது. அதேபோல் அதிமுக அடையாளமே தெரியாத ஒரு வேட்பாளரை பாமகக்கு கொடுத்து இந்த தொகுதியில நிறுத்தி இருக்கின்றார்கள். இந்த இரு வேட்பாளரையும் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி குக்கர்ல வைக்கிற ஆட்டுக்கால் பாட்டு மாதிரி 2 வேட்பாளரையும் வேகடிக்க வேண்டும் என்று உங்கள் முன்னால் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இஸ்லாமிய சொந்தங்களே, திமுக உங்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது. திமுக ஏதோ பாஜகவின் எதிரி போல சித்தரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. வாஜ்பாய் தலைமையிலே தாமரையை தமிழகம் முழுக்க தாங்கி பிடித்து சட்டமன்றத்திலே பாஜகவின் எம்எல்ஏக்களை கொண்டு வந்தது கேடுகட்ட கருணாநிதி அரசாங்கம் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. சட்டமன்றத்திலே இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதி என்று வாயால் சொன்னவர் டாக்டர் கருணாநிதி அவர்கள். கோயம்புத்தூரிலே 19 முஸ்லிம்களை நாய் சுடுற மாதிரி சுட்டு கொல்லுவது ஆட்சியில் இருந்தவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள். இஸ்லாமியர் எல்லாம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் திமுக காரர்கள். இஸ்லாமியர் வாக்களிப்பதற்காக தான் இன்னைக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம்களுக்கு 3 சீட்டும், மனித மக்கள் கட்சிக்கு 2 சீட்டும், நாய்க்கு எலும்பு போடுற மாதிரி இஸ்லாமியர் வாக்கெல்லாம் வேணும். ஆனா நான் எலும்பு போடுவேன் சொல்லி இன்னைக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் இஸ்லாமிய விரோத போக்கை மீண்டும் ஊர்ஜிதம் செய்திருக்கின்றார். ஆனால் மக்கள் செல்வர் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் கூட்டணியா இருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் சிங்கம் அசாருதீன் ஓவைசி அவர்களுக்கு 3 சீட்டும், எஸ்டிபி அவர்களுக்கு 6 சீட்டும், பாண்டிச்சேரியிலே 4 சீட்டும் 13 சீட்டை கொடுத்து இஸ்லாமியர்களின் பிரதிநிதியாக இஸ்லாமியர்களின் பாதுகாவலர் இருக்கக்கூடியவர் ஒரே தலைவர் டிடிவி தினகரன். திமுகவை ஏமாந்து நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டாம். மரியாதைக்குரிய ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர், உங்களின் நண்பர், உங்கள் வீட்டு பிள்ளை, கூப்பிட்ட குடலுக்கு ஓடோடி வரக்கூடியவர். பிரியாணி கடையில போய் உடைக்க மாட்டாரு, வீட்டு வாதல போய் அடிக்க மாட்டாரு, ரவுடிசம் பண்ண மாட்டாரு, காசு கேட்க மாட்டாரு, கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ண மாட்டாரு. இந்த தொகுதியிலே யாரெல்லாம் ரவுடிசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும். அதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு வரும் 6ஆம் தேதியிலே குக்கர்
சட்டமன்றத்திலே ஒழிப்பதற்காக குக்கர் சின்னத்திலே வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு மரியாதைக்குரிய அசுருதீன் ஓவைசி சாப் அவர்கள் குக்கர் சின்னத்திற்கு ராஜேந்திரன் வேட்பாளர்களுக்கு உங்கள் முன்னால் வாக்கு சேகரிப்பார்கள். मोहतरम जनाब एल राजेंद्रन साहब जो शेफाक असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के AMMK के उम्मीदवार हैं, मेरे भाई जनाब मुस्तफ़ा साहब, हाज़रीन इकराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम से ये रिक्वेस्ट और गुजारिश करने आया हूँ कि 6 अप्रैल के दिन आप तमाम मिलकर अपना एक वोट AMMK के पार्टी के उम्मीदवार हैं राजेंद्र साहब को दें, ताकि तमिलनाडु की सियासत में एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव इमर्ज हो सके। यहाँ पर हमेशा 2 सियासी पार्टियों का पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्मेशन रहा है। मुझे यकीन है और मेरी राय है कि इस मरतबा तमिलनाडु की सियासत में एक नई तारीख लिखी जाएगी और एक थर्ड पॉलिटिकल फॉर्मेशन इमर्ज होगा। MIM पार्टी TT दिनाकरन साहब की पार्टी की तायीद कर रही है और इस अलायंस में हमारे को 3 सीट मिले हैं और मैं इनके कैंडिडेट्स के कैंपेन के सिलसिले में आज चेन्नई के मुख्तलिफ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर उनके कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए कैंपेन कर रहा हूँ। मैं आपको बताने भी आया हूँ मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों कि जब ट्रिपल तलाक का कानून आया, यही MIM पार्टी थी जिसने लोकसभा में BJP के उस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई और ये बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम ख़वातीन के मफाद में नहीं है बल्कि मुस्लिम ख़वातीन को नुकसान पहुँचाएगा। जब मैंने डिवीज़न का मुतालबा किया लोकसभा में, आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए कि ना कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया ना DMK ने साथ दिया। जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का कानून पार्लियामेंट में लाया गया, मैंने उस कानून को काला कानून करार देकर उस कानून को फाड़ दिया और जब मैंने पार्लियामेंट में वोटिंग और डिवीज़न का स्पीकर से डिमांड किया और जब वोटिंग हो रही थी तो ना DMK ने वोट दिया ना कांग्रेस पार्टी ने वोट दिया। 9 वोट मुझे मिले मेरे अमेंडमेंट्स पर। मेरे अमेंडमेंट क्या थे? हम ये कह रहे थे कि CAA का कानून रिलीजन की बुनियाद पर नहीं बनना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। तब भी DMK खामोश बैठी रही और कांग्रेस ने भी वोट नहीं दिया। आज हम पर उंगलियां उठा कर कहते हैं कि हम वोट डिवाइड करने आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि DMK के अलाइव में कांग्रेस पार्टी है। इसी कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का बिल लेकर आए। उस बिल को इतना स्ट्रिंजेंट बनाया गया कि आज आप देखते हैं कि न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे इंडिया में नौजवान बच्चे और बच्चियों को जेल में डाला जा रहा है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी के इस कानून का साथ दिया, लोकसभा में भी सपोर्ट किया, राज्यसभा में भी सपोर्ट किया। आज DMK, AMMK और AIMIM पर उंगलियां उठाते कि वोट काटने को आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट करके शिवसेना का चीफ मिनिस्टर नहीं है? वही शिवसेना का चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है, वी आर प्राउड दैट वी डेमोलिश द बाबरी मस्जिद। क्या ये सेक्युलरिज्म है? आप बताइए। इस तरह से ये लोग अपनी वोटों के हासिल करने के लिए ऑपोर्चुनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश अपील है, एक थर्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो इमर्ज हो रहा है, एक वायबल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म TT दिनाकरन के रूप में आप उनको सपोर्ट करिए। ये DMK का झूठा प्रोपेगेंडा है कि AMMK BJP से कोई हाथ मिलाएगा, कोई हाथ नहीं मिलाएगा। TT दिनाकरन अपनी पार्टी चलाएंगे। नरेंद्र मोदी का साया भी इंशाअल्लाह ताला AMMK पर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से रास मुकाबला AMMK का DMK से है। ADMK तो इंशाअल्लाह इलेक्शन हारेगी, EPS भी हारेंगे, OPS भी हारेंगे, वो घर में बैठेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि जो कोई भी नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करता है उसको इलेक्शन हारना ज़रूरी है। ये हमारी मुल्क की डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बड़े बाप का बेटा हो तो उसको जीत जाना चाहिए। हाँ,
जिस जमाने में जमहूरियत नहीं थी, एक बादशाह का बेटा बादशाह हो सकता है, मगर जमहूरियत में जरूरी नहीं है कि एक बड़े लीडर का बेटा कोई कामयाब हो जाए। आज यहाँ पर एल राजेंद्रन एक ग्रास रूट लेवल के लीडर हैं जो जमीन पर बैठकर आप गरीबों के दरमियान में काम करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक ग्रास रूट लेवल लीडर को हक में वोट देकर यहाँ की इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इनको कामयाब और कामरान करिए। MIM पार्टी इंशाअल्लाह ताला दिनाकरन साहब के साथ इस इलेक्शन के तक नहीं है, बल्कि इलेक्शन के बाद भी हम TT दिनाकरन के साथ रहेंगे। तमिलनाडु में अगर किसी का पॉलिटिक्स में फ्यूचर है, कोई फ्यूचर है तो सिर्फ TT दिनाकरन है और MIM पार्टी उनके साथ रहेगी। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और यकीनन इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में हराना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात गोधरा में, वो गोधरा जहां पर 2002 के वाक़यात आपको याद होंगे, वहां पर MIM पार्टी ने अपने 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स की सीट पर कामयाबी हासिल की। हमने 17 इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स का सपोर्ट किया और हमारे एक हिंदू भाई को वहां पर मेयर बनाया और MIM पार्टी का कॉरपोरेट डिप्टी मेयर बना। जब MIM पार्टी गुजरात गोधरा में जाकर बीजेपी को हरा सकती है तो क्या तमिलनाडु में हम नहीं हरा सकते? इंशाअल्लाह ताला तमिलनाडु में जरूर यहाँ पर फैशिज्म और कम्युनलिज्म और अपॉर्चुनिज्म का खात्मा होगा। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि 6 अप्रैल के दिन आप यहाँ पर राजेंद्र साहब वोट देकर कामयाब करिए, TT दिनाकरन के हाथ को मजबूत करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान झंडा उधर कोलकाता के पूरे कोलकाता थैंक यू ऊपर ब्रह्मांड पिक्चर
आ जाओ पूरे जने आज हम नगर ना कौन डाल दूँ